Namaskar, friends. Good afternoon. Jai Hind. I am Captain Purva, the psychological counselor. How are you all? Friends, today I want to discuss the topic of marital harmony, यानी कि वैवाहिक संबंध कैसे अच्छे किए जाएं. How do we work on the marriage relationships? So first of all, as we know, as they say, pairs are made in heavens. But then, why it happens that the marriages occur in this earth, and then again the divorce rates are increasing day by day. ये क्या कारण है कि आखिर डाइवोर्स रेट जो 1980s में दिल्ली में 2 ही कोर्ट होते थे डाइवोर्स के, अभी वहाँ पे 16 कोर्ट्स हैं. एंड डे बाय डे इन ऑल द कंट्रीज द डाइवोर्स रेट्स एंड दीज रिलेशनशिप्स आर ब्रेकिंग, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग. सबसे पहले मैं आपको बताऊं, व्हेन टू पीपल मीट, देयर बैकग्राउंड्स मीट, आदर दे मीट थ्रू द मैट्रिमोनी साइट्स. कई साइट्स हैं आजकल तो, बहुत तरह की साइट्स आ गई हैं मार्केट में. यू कैन सर्च फॉर अ सोलमेट, यू कैन गो फॉर एनी बडी इफ़ यू नो. अरेंज मैरिज है, लव मैरिजेज है, उसके भी काफ़ी फैक्टर्स हैं. पीपल से लव मैरिजेज डोंट वर्क वेल, बट आई हैव सीन अरेंज मैरिजेज ऑल्सो ब्रेकिंग. सो देर इज़ नो टैबू, दैट लेट्स नॉट मेक इट अ टैबू कि अरेंज मैरिजेज ओनली वर्क एंड लव डोंट वर्क और वाइस वर्सा. इट्स नथिंग लाइक इट. सो क्या कारण है कि आज जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये मैरिजेस हमारे टूटने की हालत में आ जाती हैं. कई बार दे कम टू द काउंसलर्स. एज अ साइकोलॉजिकल काउंसलर आई हैव बीन सीइंग द केसेस, लाइक इफ आई रेफर टू सम केसेस फ्रॉम माई डायरी. देयर वॉज अ मैन हु वॉज फादर ऑफ अ 8-year-old daughter, and he came up to talk about his wife. He said, ma'am, my wife works in an office, and she is around 37, 38-year-old, but she is in a relationship with a 10-year-old younger guy in her office. And they were continuously meeting in the office also. After office hours, she would say, वो late हो रही है, she has to go home late and all that. ना, she would cook up the story. Husband का shop पास में था, he was running a business, he would look after the daughter, but wife would not take any interest in looking after the child also. तो gradually what happened, she used to come late. He started suspecting कि क्या कारण है. तो उसने अल्टीमेटली जब कुछ समझ नहीं आया, ही हैक्ड हर फोन हैकिंग कर दिया वाइफ का. देन आफ्टर हैकिंग द फोन ही सॉ लॉट ऑफ मैसेजेस बीइंग एक्सचेंज बाय ईच अदर. He really felt disheartened. Then he came to me for the help. That is one case. There's another case. A woman married for around 10 years to the man, has 2 children in the pre-teens, and she knows that he is in a relationship, extramarital relationship for 5 years. Despite knowing that, she had discussed this with him. Despite this, he convinces her, no, I'm sorry, ये वो करके वो आधा साल करीब वो he stays okay with her. Again, he goes back to the previous woman who is in the relationship with him. But she knows this is happening side by side. But again, she is not having the guts to say bye-bye to the relationship. उस लेडी को इतना अंदर से नहीं आ पा रहा है, बिकॉज शी इज़ डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन हिम. शी हैज़ 2 kids टू टेक केयर ऑफ अलॉन्ग विद हर. तो उसको समझ में नहीं आ रहा इफ़ शी कॉज ऑफ द मैरिज वो क्या बता अपने आप को डाइवोर्स ही बुलाए, या उसके बच्चों को क्या समझाए कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं वैसे हैं, तुम्हारे पास अभी कोई नहीं है पापा, या सेकेंड मैरिज करे. This was another case. There's another case. A man again married used to say she is my cousin, she is my sister and all that करके वो अपने ex के साथ simultaneously parallel relationship में है. When after 2 years of marriage the young lady comes to know कि भाई her husband is ditching her, then again she comes for counseling to me. So these are the varieties of so many cases. Out of these I have given you only a couple of examples. So my dear friends, the question is, why does this happen? Why do we end up going into towards somebody else who is not married to us? Why this happens? ये हमें आज डिस्कस करना है. बाकी और भी केसेस हैं, उसको बारे में जब मैं याद आएगा तो मैं बताऊंगी. कारण ये है कि सबसे पहले इफ़ यू आर मैरिड टू ईच अदर, वी टेक वाउज. हम लोग मैरिज वाउज लेते हैं. डिफरेंट धर्मों के अलग अलग वाउज हैं, सब कमिट करते हैं, मैं अच्छा रखूँगा, खुश रखूँगी, वॉट एवर. But then again, धीरे धीरे as we settle down in our day-to-day life, sorry, as we settle down in our day-to-day life, the challenges start coming. हमें दिखने लग जाता है कि भाई आज तो हमारे पास सुबह उठ के चाय कौन बनाएगा, बच्चों को कौन रेडी करेगा,
हु विल लुक आफ्टर द फाइनेंसेस ऑफ द फैमिली? गेस्ट आ गए तो उनकी कौन लुक आफ्टर करेगा? इन लॉज की कौन सुनेगा? वहाँ पे फंक्शन है, हु विल गो देयर? यू आर गोइंग आउट ऑन टूर, आर यू टेलिंग मी द ट्रुथ दैट यू आर रियली गोइंग आउट ऑन टूर, और आर यू जस्ट टेलिंग द lie? So these are the kinds of suspicions sometimes we develop, either through somebody or through our own experience with that same person. One more thing, my friends, I would like to touch upon here. Sometimes a third person plays a major role in breaking your marriage. Either it can be your in-laws, your very close in-laws, or your friends, or a third person who knows that yes, you are now believing that person. He or she tries to take the advantage of the situation and leads the marriage to the breakup. ऐसे इंसानों से दूर रहें. अगर आपको लग रहा है कि यू आर एंडिंग अप बीइंग इन गॉसिप विद दैट पर्सन, आप सब कुछ बता रहे हो, सबसे पहले आप ये गांठ बांध दीजिए. वॉट एवर यू आर डिस्कसिंग विद हस्बैंड एट होम, चाहे वो प्यार की बात है, चाहे तकरार की बात है, चाहे आर्ग्यूमेंट्स है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट है या सीरियस इश्यूज है, प्लीज़ डू नॉट टेल इट टू द आउटसाइडर्स. आप किसी थर्ड पर्सन से उसका डिस्कशन ना करें, क्योंकि नेचुरली वो कैसा है, हाउ ट्रस्ट वर्दी द पर्सन इज, दैट इज़ वन क्वेश्चन. दूसरा, योर स्पाउस मे नॉट लाइक इट. अगर दैट स्पाउस कम टू नो थ्रू द थर्ड पर्सन कि भाई तुम्हारे बारे में तो ये डिस्कस कर रही थी, तुम्हारा वाइफ है, तुम्हारा हस्बैंड, योर बेटर हाफ आर डिस्कसिंग अबाउट यू, हाउ विल यू रिएक्ट? आपको बुरा लगेगा ना? सो कीपिंग दैट इन माइंड, कीप सम सीक्रेट्स इनसाइड यू, सम थिंग्स इनसाइड यू. उनको टॉलरेट करना सीखिए. हम लोग को थोड़ा कुछ होता नहीं, हम सीधा वी स्टार्ट मेकिंग अ यू एन क्राई कि आई विल डिवोर्स यू, आई विल. पुराने ज़माने में पेशेंस था. मैं ये नहीं कह रही कि स्टार्ट टेकिंग नॉनसेंस या रॉन्ग चीज़ों को लीजिए, नहीं. But the old timers, what I have seen in the parents' generation or maybe before that, they had lots of patience. Ladies used to do household chores also. They used to look after children also. Men केवल बाहर जाके काम करते थे, घर आके एक पत्ता नहीं उठाते थे. So that was the message being passed on to the generations down, that men are only going to work outside and they will not prepare a single cup of tea also. In some houses till date, आप देखोगे इन रिमोट प्लेसेस ऑल्सो, आई थिंक गांव में आजकल यही है कि आदमी लोग शायद क्या ही काम करते हैं ज़्यादा, पर क्या ये सही है? लेडीज़ सुबह शाम अगर अगर वो अपने बच्चों को तो देखती ही है, साथ में इफ़ शी हैज़ पिक्ड अप अ करियर, अगर वो कुछ काम करना चाहती है, फिर हम देन वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उससे कैसे ये चीज़ें तो मैच ही नहीं पाएंगे अगर उसको घर से ही नहीं सपोर्ट मिलता. तो माय डियर मेन फोक्स, प्लीज़ सपोर्ट योर वुमेन. अपनी वाइफ्स को सपोर्ट करिए. हो सकता है वो कुछ करना चाहती है, बट अगेन शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड, वो अंदर ही अंदर घुल रही है. वो आपकी, अगर ये फैक्टर्स नहीं है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चक्कर नहीं है, हो सकता है आपके सपने दबे हुए हैं, आप अपने आप को बंद पिंजड़े में कैद समझते हो, आप कुछ करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू फ्लाई हाई. स्पेशली फॉर वुमेन, दे वॉन्ट टू फ्लाई हाई एंड दे आर नॉट एबल टू डू दैट. देयर विंग्स आर क्लिप्ड. और ये क्लिप कौन करता है? सो कॉल्ड हस्बैंड्स, जो एक वाउज लेते हैं, जो एक कसम लेते हैं कि तुमको मैं हमेशा खुश रखूंगा. थिंक अबाउट दिस. अगर आपके फेदर्स क्लिप, इफ समबडी क्लिप्स योर फेदर, आपके पंख काट दिए जाए, आपको मनाही कर दिए जाए, आप बाहर नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, इतना रोका टोकी आप पे कर दी जाए, तो माय डियर हस्बैंड्स, आप कहाँ जाओगे? विल यू लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैरिज? आप एक सिंगल चैनल चेंज करने के लिए भी, इफ अ वाइफ टेल्स समबडी कि भाई चेंज दिस चैनल, कई घरों में रिमोट को लेके झगड़ा होता है, खाने को लेके झगड़ा होता है, डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें चलती रहती है. लाइफ है तो ये फैक्टर्स आएंगे ही. तो गिव ईच अदर सम स्पेस. एक दूसरे के सपने को पूरा होने दीजिए. कोई बड़ी बात नहीं. अगर एक लेडी काम कर रही है आपके घर में, एक दूसरा मेड आके, या कोई मशीनें हैं, आप नई नई मशीनें, टेक्नोलॉजी संभालिए. सुबह खाना तैयार करके फ्रिज में रख दीजिए. डिश वॉशर्स हैं, फूड प्रोसेसर्स हैं, मेक यूज़ ऑफ दीज थिंग्स. बजाय कि वो लेडी जो अगर बाहर जाके काम करके कुछ करना चाह रही है, उसको क्रश करके आप उसका मन मार के घर में बैठा दें. आई थिंक दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. और मे बी ये तो ख़त्म हो जाएगा. पैंडमिक विल एंड इन सम मंथ्स टाइम. कभी ना कभी तो ख़त्म होगा. ऑल ओवर इंडिया में तो आप देख ही रहे हो, काफ़ी नॉर्मलसी आ गई है. बट स्टिल, इफ़ यू फील दैट शी शुड नॉट जॉइन अ रेगुलर स्कूल और ऑफिस, यू कैन encourage हर टू वर्क फ्रॉम होम. आप उनको इतने घंटे अपने लिए दे दीजिए. भाई तुम 4 घंटे 6 घंटे, यू आर ऑन योर ओन, यू कैन वर्क फ्रॉम होम. वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ? हेल्प हर आउट. फाइनेंस हर. If she's not earning anything, finance her, because in so many divorce cases, what happens? After the divorce is filed, the lady asks for compensation. In other fields also, in civil, in army, I have seen so many cases. वहाँ पे divorce file होते हैं, and some, yes, one more case, like a few days back I got a case
the lady always suspects her husband that he is having a crush over the neighborhood lady. उसको हमेशा लगता है कि वो बाहर खड़े होके ही वेट्स फॉर हर एंड ही टॉक्स विद हर, शी गोज टू हर विलेज, ये पीछे से इससे बातें करता है. तो ये जो सस्पिशन है, इसका क्या इलाज है? ये सस्पिशन हम कैसे दूर करें? इसके बारे में आपको एक दूसरे के साथ पॉजिटिव क्वालिटी टाइम बिताइए. स्पेंड गुड टाइम विद ईच अदर, अर्न ईच अदर्स फेथ. आप ये देखिए कि भाई तुम और इन चीज़ों को सोचिए मत. मे बी आपकी माइंड में ये चीज़ें डाली जा रही हैं. समबडी इज ट्राइंग टू पुट दिस थिंग्स इन योर माइंड. ये देखिए, तो ये चीज़ें आपको खुद ही देखनी है. आपको शादी में रहना है कि नहीं. यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर मैरिज, डोंट टोको ईच अदर सो फ्रिक्वेंटली. एक दूसरे को टोका टोकी मत करिए. एक दूसरे को थोड़ा बिंदास रहने दीजिए, कंपनी दीजिए. बी ए कंपेनियन, बी ए फ्रेंड टू ईच अदर. डोंट ऑलवेज बी जजमेंटल, डोंट बी सो पॉजिटिव. टीच योर मेन, टीच योर बॉयज टू रिस्पेक्ट वुमेन एट होम. आपके जो बच्चे हैं, आपके जो बड़े हैं, उनको बोलिए कि एक औरत का सम्मान करें. ट्रीट द वुमन नाइसली. शी ऑल्सो डिजर्व्स रिस्पेक्ट. सॉरी, बैड थ्रोट अगेन. Remember these points, my dear friends. So you should know, if you are committed to a marriage, you should take each other along with the flaws. आदमी परफेक्ट भी है तो फ्लॉ भी है उसमें. नो बडी इज़ परफेक्ट. इवन यू आर मी, आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट, यू आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट. तो ईच अदर, एक्सेप्ट ईच अदर. इफ़ यू हैव कमिटेड कि हाँ मैंने रहना है, तो आप घर में भी तो अपने माता पिता भाई बहन के साथ उनके फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हो. यू एक्सेप्ट ईच अदर विद ऑल द फ्लॉज, इजंट इट? आप सोचते हो कि हाँ इसमें कमियाँ हैं तो क्या हुआ, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरे बहन है. तो ऐसे ही हम क्यों नहीं अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को कमियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं. कई बार लेडीज़ आती हैं, बोलती हैं मैम उस घर के हस्बैंड तो चाय बना के सुबह पिलाते हैं, हमारे हस्बैंड चाय भी नहीं बनाते हैं. तो हु नोज़ कि वो जो आदमी चाय बना के पिला रहा है, हो सकता है वो डोमेस्टिक वायलेंस करता हो सकता है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हो सकता है वो बहुत अच्छा भी हो. आई एम नॉट सेइंग कि सुबह चाय बनाने वाले बहुत अच्छे हैं या बहुत खराब है. तो ऑन द बेसिस ऑफ वन थिंग, दैट इफ समबडी इज मेकिंग टी फॉर यू इन द मॉर्निंग, अ पर्सन बिकम्स द बेस्ट. नो. तो लेट्स नॉट कीप दिस एज अ क्राइटेरिया. समटाइम्स इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम ब्रोकन फैमिलीज, हमने अपने घर में अपने मम्मी पापा को झगड़ते हुए देखा है. इफ़ यू हैव सीन देम फाइटिंग विद ईच अदर, we end up keeping that message in our mind, in a subconscious mind, and then whenever we enter a relationship, we unknowingly pass it on to our relationship which is at present. So this, be very careful. अगर आपके घर में नॉट पेरेंट्स, अगर आपके भाई भाभी या दीदी जीजा लोग लड़ रहे हैं या वेरी क्लोज फ्रेंड्स वो लड़ रहे हैं, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है और आप भी शायद अपने रिलेशनशिप को उसी लड़ाई की उस मैदान में ले आओ, जबकि देयर इज़ नो इशू. बच्चों को लड़के लड़ाई होते हैं. फिर व्हेन द चिल्ड्रन ग्रो अप, दे स्टार्ट क्रिएटिंग इश्यूज फॉर द पेरेंट्स टू फाइट. वो ऐसी सिचुएशन कर देते हैं कि पेरेंट्स दे एंड अप फाइटिंग. तो पापा बोलते हैं मैं बेटे का साइड लूँगा, माँ बोलती है मैं दूसरी का साइड लूँगी. दिस वे मदर एंड फादर में होते होते कब गैप आ जाता है, दे डोंट रियलाइज. सो बी वेरी केयरफुल माई डियर फ्रेंड्स. अगर ऐसी सिचुएशन आपके घर में है, याद रखिए एट द एंड ऑफ द डे, लाइफ के टुवर्ड्स द एंड, जब आप जितने साल काटोगे, आप प्रेफरेबल हस्बैंड एंड वाइफ ही साथ में काटेंगे. एक दूसरे को ज़्यादा क्रिटिसाइज मत करिए कि आप एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं. चेंज योर हैबिट, चेंज योर बिहेवियर, अप्रिशिएट, ग्रैटिट्यूड. अगर आपको कोई चाय बना के दे रहा है, खाना बना के दे रहा है, जला हुआ टोस्ट भी खिला रहा है, गलती से जल गया, जली हुई रोटी गलती से जल गई, प्लीज़ डोंट माइंड, जस्ट अप्रिशिएट. थैंक यू फॉर सर्विंग मी फूड. आपको कितना अच्छा लगेगा. आप अपने को उस जगह पे रखो. आप किसी के लिए कर रहे हो, उसके बाद आप उसको फिर भी आपको चार बातें सुननी पड़े, हु वुड लाइक टू वर्क फॉर यू. आप तो बोलोगे नहीं मैं नहीं करता, आप भी रखो तो अपने पास. सेम वे रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ग्रैटिट्यूड एज वेल एज अप्रिसिएशन, कमिटमेंट एंड लॉयल्टी. एक दूसरे पे भरोसा करिए और एक अच्छी मैरिड लाइफ जिए. घर में एक जन अगर फाइनेंस संभाल रहा है तो दूसरे जन बच्चों की भी जिम्मेदारी ले. सब आ जाइए दोनों. दीज आर टू व्हाट इज द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. एक पहिए, दो पहिए होते हैं गाड़ी के, कॉइन के दो साइड है, हम सुनते आ रहे हैं. साइकिल के दो चक्के हैं. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन हियरिंग. इसका मतलब क्या है कि अगर एक चक्का हट जाए साइकिल का या एक कॉइन के एक ही साइड रहे तो काम तो नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी.
इसका मतलब यही है कि लिव एंड लेट लिव, एक दूसरे के पूरक बनिए, कॉम्पीट मत करिए, कंप्लीट ईच अदर। समझ में समझे आप लोग? डोंट कॉम्पीट विथ ईच अदर, कंप्लीट एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एक दूसरे के साथ रहिए, ये एक ही जिंदगी है। एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय द कंपेनियनशिप, एंजॉय ईच अदर्स बॉन्डिंग एंड एंजॉय दैट लव विच यू फील फॉर ईच अदर। स्मॉल स्मॉल इश्यूज को हंस के, सेंस ऑफ ह्यूमर रखिए, हंस के टाल दीजिए। दिस विल रियली हेल्प यू लिव अ वेरी सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ। So thank you so much, my dear friends. Take care. Bye bye. Jai Hind.